سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت علی جن ولی اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اہل بیت تمام دشمنار قاتلات لعنت لعنت واضح بلند تر صلوات بیٹی صاحب ہمارے شاعری ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک پھول وہاں پڑا ہو اور ایک وہاں پڑا ہو، ایک ادھر پڑا ہو ایک ادھر پڑا ہو تو پھر اس طرح سے اچھے نہیں لگتے. جب آپ گلدستہ بنائیں گے تو اچھے لگیں گے. میری معززین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سامنے آ جائیں تاکہ مجلس کا کچھ ماحول بن جائے. بسم اللہ. دعا ہے پروردگار عالم طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ بی بی کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانین مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس کی میرا مولا تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. میرا اللہ جامع مختون نرجس سلام اللہ علیہا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا اللہ جامع مختون نرجس سلام اللہ علیہا کے اساتذہ کو صحت کلی عطا فرمائے. میرا اللہ جامع مختون نرجس سلام اللہ علیہا کے طلباء کے علم میں اضافہ فرمائے. میرا اللہ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، میرا اللہ ہمارے بار میں حاجی کا ظہور جلد از جلد عطا فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. جی اجازت ہے نوکری کا آغاز کروں. دوستو یہ انتقام مشیت ہے کہ اللہ محمد کے بیٹے کی شبیہوں کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کروا رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی سید آپ کو شاد و آباد رکھے. اللہ شبیہوں کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برآمد کروا رہا ہے، اور ہم سے یہ کہنے والے کہ یہ وہی گھوڑا تھوڑی ہے کہ جس پر امام حسین بیٹھتے تھے. میں پوچھتا ہوں یہ وہی دمبا تھوڑی ہے جو جنت سے آیا ہے. یہ وہی دمبا تھوڑی ہے شاہ جی جو جنت سے آیا ہے. لائے تو آپ بھی بکر منڈی سے ہیں، آپ کی دعائیں چاہیے. لائے تو آپ بھی بکر منڈی سے ہیں اور بڑا ٹٹول کر لائے ہیں، بڑا دیکھ بھال کر کے لائے ہیں. سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو. میں کہتا ہوں بھائی تم سارا سال گوشت کھاتے ہو، کبھی تم نے کسی کسائی سے نہیں کہا کہ یہ جو گوشت دے رہے ہو بکرا اندھا تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا، سینگ پورے تھے کہ نہیں؟ آخر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں آخر اسے ایک دمبے کے لیے اتنی تحقیقات کیوں؟ تو جواب آئے گا جناب یہ اس کی جگہ آ رہا ہے جو بے عیب تھا، اور 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ بے عیب آتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی سید آپ کو شاد آباد رکھے. بے عیب کی جگہ بے عیب آتا ہے. بسم اللہ جی آپ کی دعائیں چاہیے. بے عیب کی جگہ بے عیب آتا ہے. اس کا احترام کرو، اسے مارنا بھی نہیں، کسی کی رسی کو بھی زور سے نہیں کھینچنا. میرا ایک سوال ہے کبھی اس کی عزت کیوں کریں؟ شاہ جی بچے بڑے توجہ چاہتے ہیں اس فکرے پر. شاہ جی بچے بڑے خوش ہوتے ہیں بکرے اور بکریوں سے، لیکن جن کے گھر میں پودے ہوتے ہیں وہ بیچارے جلدی نہیں کرتے خریدنے میں. توجہ کیجئے گا کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بکرا باغ کا دشمن ہوتا ہے. اب جانور جو ہوا، جانور کو جو پتا کہ باغ کا مالک مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی سید آپ کو شاد آباد رکھے. اب بکرا جو ہوا، جانور جو ہوا،
जानवर को क्या पता कि बाग का मालिक कौन। इसका एहतराम करना चाहिए और लाजमन इसका एहतराम करें, समझ गए? और लाजमन इसका एहतराम करें। ये वो इकलौता नबी है कि शादी जिसकी अल्लाह ने याद मनवाई है। नूह अलैहिस्सलाम को भी हम नबी मानते हैं, लेकिन उनकी याद में कभी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि साल में एक मरतबा कश्ती पर चढ़ जाया करो ताकि नूह की याद हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम की याद में पुतला नहीं बनाते, ईसा की याद में परिंदे नहीं बनाते, मूसा की याद में पहाड़ पर नहीं चढ़ते, आखिर इब्राहिम की याद क्यों? अल्लाह फरमाता अमीर हो तो तब मनाओ, गरीब हो तो तब मनाओ। जो की जगह अमीर हो तो तब मनाओ, गरीब हो तो तब मनाओ। अमीर हो तो वहां जाके मनाओ जहां हुई थी, तवज्जो, अमीर हो तो वहां जाके मनाओ जहां हुई थी। बेनज़म मलंगों की तरह के दो कपड़े पहनो, लेकिन उनका रंग सफेद होना चाहिए। अल्लाह के घर गए तो कपड़े का रंग सफेद, तवज्जो कीजिएगा। दुनिया में आए तो कपड़े का रंग सफेद, दुनिया से गए तो कपड़े का रंग सफेद, अल्लाह के घर गए तो कपड़े का रंग सफेद। इस तरह है ना जी, जब दुनिया में आए तो जो कपड़ा बांधा गया उसका रंग सफेद, कफन का रंग सफेद, अल्लाह के घर जाओ तो कपड़े का रंग सफेद। शादी चार पत्थरों के दरमियान हाथ घूमता है, अब सारा मजमा चुप कर जाए, तीन पत्थरों को मारना पड़ता है, एक को चूमना पड़ता है। तीन पत्थरों को मारना पड़ता है, एक को चूमना पड़ता है। कोई बेवकूफ होगा जो कहे कुछ फर्क नहीं इन चारों में। मैं कह रहा हूं शैतान की निशानी और होती है, रहमान की निशानी और होती है। आपका सलामत रखे यार, सैयद आपको शादाबाद रखे। शैतान की निशानी और होती है, रहमान की निशानी और होती है। शादी सारी हदें बयान करना मकसूद नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। नानी जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, तवज्जो कीजिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। सुबह हुई, बेटे से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। शायद अगर कोई मौलवी ख्वाब देखे, मिसाल है, अगर कोई मौलवी ख्वाब देखे और सुबह उठे बेटे को लिटा कर गर्दन पर छुरी रख दे तो छुरी के नीचे दुम्बा नहीं आएगा बल्कि पुलिस आएगी। इस तरह है जी, छुरी के नीचे दुम्बा नहीं आएगा बल्कि पुलिस आएगी। मैं अपने नौजवान भाइयों तक एक फिक्रा पहुंचाना चाहता हूं, अगर पहुंच जाए तो मेरी आज की मजलिस पढ़ने का मकसद पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूं बेटे को लिटा कर छुरी रखने की इजाजत शरीयत में सिर्फ हुज्जत खुदा को है। और कायनात में दो ही बाप ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बेटा लिटा कर छुरी रखी, या जनाब अब्दुल मुत्तलिब या जनाब इब्राहिम। इब्राहिम को अब्दुल मुत्तलिब ने लिटाया अब्दुल्ला को। अगर अब्दुल मुत्तलिब हुज्जत खुदा ना होता तो उन्हें इख्तियार कैसे होता? मालूम हुआ अब्दुल मुत्तलिब भी हुज्जत खुदा है। अपने दौर के लोगों पर खुदा की तरफ से हुज्जत है। दरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अपने दौर के लोगों पर खुदा की तरफ से हुज्जत है, ठीक है जी। अपने दौर के लोगों पर खुदा की तरफ से हुज्जत है। समीर गिरामी कद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। सुबह हुई, बेटे से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। शादी बेटे ने कहा इफ़अल बिमा तुमारून, बाबा जो आपको अम्र हुआ है उसे पूरा करें। शादी तवज्जो कीजिएगा, बाप कह रहा था ख्वाब है, बेटा कह रहा था अम्र है। बेटा कह रहा था बाबा आप मुझे लिटाइए, इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। नानू जी मेरे पिछले फिक्रे याद हैं, मैं अगला फिक्रा अर्ज करना चाहता हूँ। सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। हिजरत की रात आई, नबियों के सुल्तान ने हैदर कर्रार से कहा या अली खतरा है सो जाओ। या अली खतरा है सो जाओ। जिन्हें भाइयों की तवज्जो नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ भाई रजा मैं एक ऐलान करूँ। शारी हजरात एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएं। कल लाहौर में एक अजीम शान जलसा मुनक्कद होगा जिसमें खुदा न खासा बम फटेगा। शिरकत फरमा कर सलाह बेदारान हासिल करें जी। क्यों भाई कोई जाएगा? अब सोचोगे अली कितना बहादुर है।
मौला आपको सलामत रखे। आप सोचोगे अली कितना बहादुर है। पैगंबर ने पहले फरमाया या अली खतरा है सो जाओ, खतरा है सो जाओ। मेरे भाई खतरे में तो आई हुई नींद भी उड़ जाती है, खतरे में तो आई हुई नींद भी उड़ जाती है। या अली खतरा है सो जाओ। मेरे बाद मुस्तफा शाह जी बैठे, इनको भी टाइम देना है। या अली खतरा है सो जाओ, खतरा है सो जाओ। पलट कर अली ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तवज्जो कीजिएगा, या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? शाह जी 1000 तकरीरें हो मुझ जैसे तालिबे इल्मों की, लेकिन अगला मैं फिक्रा पढ़ रहा हूँ। अल्लामा अज़हर हसन ज़ादी अल्लाह मकामा खतीब आले मोहम्मद, उनका जलील और तरीन फिक्रा, वो फरमाते हैं कि पैगंबर ने फरमाया या अली खतरा है सो जाओ, खतरा है सो जाओ। पलट कर अली ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? नबी फरमाते हैं हाँ या अली, अगर तुम मैं बनकर सो जाओ तो। या अली, अगर तुम मैं बनकर सो जाऊं तो। शायद मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये फिक्रा कहता हूँ, मिंबर हुसैन पर खड़ा होकर कहता हूँ, मेरे बादशाह अली ने तारीख आदमियत का नहीं बल्कि तारीख इबादत का सबसे पहला सजदा शुक्र अदा किया। न इससे पहले इब्राहिम ने किया, न आदम ने किया, न जिब्राइल ने किया, न किसी जिन ने किया, न किसी इंसान ने किया। सबसे पहला सजदा शुक्र अदा किया मेरे बादशाह अली ने। हिजरत की रात अदा किया सजदा शुक्र। तवज्जो कीजिएगा, बेनजा पिछली तकरीर याद रहे, तवज्जो कीजिएगा। वहाँ इस्माइल लेट रहा था, उसने कहा कि मैं सब्र करूंगा। यहाँ अली लेट रहा था, अली ने कहा कि मैं शुक्र अदा करूंगा। अब पता नहीं किसे समझ और किसे ना आए, मगर इस्माइल के सामने मौत आई तो साबिर बना, अली के सामने मौत आई तो शाकिर बना। अब पता नहीं बंदे में से किस बंदे को समझ आए और किसे ना आए, मगर सब्र होता है मुसीबत पर, शुक्र होता है नेमत पर। मौला आपको सलामत। सब्र होता है मुसीबत पर, नानू जी सब्र होता है मुसीबत पर, और शुक्र होता है नेमत पर, और शुक्र होता है नेमत पर। मौला आपको शाद आबाद रखे, बीबी सैयद आपको सलामत रखे। और शुक्र होता है शाह जी नेमत पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को घर से लेकर चले, तवज्जो कीजिएगा, बेटे को घर से लेकर चले। किसको लेकर चले? बेटे को घर से लेकर चले। बाप ने इरादा किया कि मैं कुर्बानी दूं, बेटे ने इरादा किया कि मैं कुर्बान हो जाऊं। शाह जी शैतान को तकलीफ हो गई। अगर फिक्रा पहुंच जाए तो मेरी आज की मजलिस पढ़ने का मकसद पूरा हो जाएगा। शाह जी शैतान को तकलीफ हो गई, शैतान को तकलीफ हो गई। इसने रास्ते में 3 नाके लगाए, क्योंकि कुर्बानी शैतान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कुर्बानी शैतान को अच्छी नहीं लगती। तवज्जो कीजिएगा, मगर वो छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। मैं सारी रात पढ़ता रहूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। बस शैतान की ये निशानी याद रहे, छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती है। मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे, आपकी दुआएं चाहिए। छुरी इब्राहिम की थी, खून इस्माइल का था, तकलीफ शैतान को थी। बस शैतान की ये निशानी याद रहे, छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती है। शाह जी इसने रस्ते में 3 नाके लगा। सबसे पहले इसने इस्माइल को हमले की जद में लिया, साथ साथ चलने लगा। मेरा देखना, साथ साथ चलने लगा। ठंडी हाय बार का कहता, हाय जवानी, इस्माइल तेरी जवानी की उम्र ज़िबा कर देगा। इस्माइल ने कहा नहीं, इन्हें अल्लाह का हुक्म हुआ। कहने लगा अब ये बूढ़ा हो गया है,
इसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। ये कहना था। इस्माइल फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला मेरे अल्फाजो करना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शादी शैतान थोड़ा भी सही और दौड़ता दौड़ता पूछने लगा आपने मुझे कैसे पहचाना, आपने मुझे कैसे पहचाना। इस्माइल फरमाते हैं जो नबी के दिमाग पर हमला करे शैतान होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। या जो नबी के दिमाग पर हमला करे शैतान होता है। जो नबी के दिमाग पर हमला करे शैतान होता है। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, क्या कहने लगा, मैं भी खा वेना ते बड़ी वेना, लेकिन जो देखता हूँ वो करता नहीं। तवज्जो, मैं भी खा वेना ते बड़ी वेना, लेकिन जो देखता हूँ वो करता नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान थोड़ा भी सही और पूछने लगा आपने मुझे कैसे पहचाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने आप को नबी के बराबर समझे, तवज्जो, जो अपने आप को नबी के बराबर समझे वही तो शैतान होता है। मौला आपके सलाम। अपने आप को नबी के बराबर समझे वही तो शैतान होता है। अब मेरी पिछली सारी तकरीर भूल जाना, लेकिन इन फिक्रों पे बड़ी तवज्जो से तवज्जो करना। तीसरा हमला किया इसने नबी की बीवी पर। इसको यहाँ पक्का यकीन था यहाँ मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि नबी की बीवियों पर यह बड़ा कामयाब होता रहा है। क्योंकि नबी की बीवियों पर यह बड़ा कामयाब होता। जो बंदे हैरान हो गए वो ये भी सुन ले कि मैंने कुरान से पढ़ा है इब्राहिम से पहले नूह की बीवी और लूत की बीवी दोनों को गुमराह कर चुका था। अब इसे पक्का यकीन था ये तो कोई मसला ही नहीं, होने गया तो होने ही कम हो गया है जी, ये तो कोई मसला ही नहीं। मैं कहता हूँ बेगारत शैतान ठहर, हाजरा तेरे चक्कर में नहीं आएगी। हो सकता है वो बेगारत तो मुझसे पूछे तो इतने यकीन से क्यों कह रहा है, अगर सुनना चाहता तो फिर सुन। मैं कह रहा हूँ हाजरा सिर्फ नबी की बीवी नहीं बल्कि एक मासूम की माँ भी बन चुकी है। एक मासूम की माँ बन चुकी है। ये मैं अब्बास की कसम खाकर कहता हूँ कभी किसी नबी की बीवी तो इसके चक्कर में आ सकती है, लेकिन मासूम की माँ इसके चक्कर में नहीं आ सकती। लेकिन मासूम की माँ इसके चक्कर में नहीं आ सकती। मौला आपको सलाम कर। लेकिन मासूम की माँ शादी नानू जी इसके चक्कर में नहीं आ सकती। आया दस्तक दी, कौन दस्तक दी, कौन, क्या नाम बताए, की ना दसे जी। आया फिर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन। गुस्से में कहने लगा हमदर्द। कैसे आए, बीबी बेटा कहाँ है, तवज्जो कीजिएगा, बीबी बेटा कहाँ है। बीबी हाजना ने फरमाया अपने बाप के साथ दावत पर गया। शायद दावत आके गए सामने जी, दावत पे चले, दावत पर गया। दावतों पर चूरी साथ लेकर जाते हैं, ज़िबा कर देगा। मुतमईन लहजे से हाजरा फरमाती है बाप है, बाप थोड़ी साथ हुज्जत खुदा है। बेशक मुझे भी ज़िबा कर दे, उसे भी कर दे, तू अच्छी माँ है, तुझे बेटे की जिंदगी की कदर कोई नहीं। जल्दी घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल और बच्चा बचा। तवज्जो नहीं फरमाई, घर से निकल और बच्चा बचा, घर से निकल और बच्चा बचा। हाजरा फरमाती है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान थोड़ा भी सही और दौड़ता दौड़ता पूछने लगा तू तो अंदर खड़ी थी, तूने मुझे कैसे पहचाना। हाजरा फरमाती है जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले शैतान होता है। मौला आपको सलामत रखे। बीबी सैयदा आपको शादा हो, जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले वही तो शैतान होता है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले में। शादी भी टाइम देना है। आखिरी वसीयत समझो ना नसीहत समझो। मैं कह रहा हूँ अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। अली का इश्क
मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ नस्ले उजाड़ देता है। इस जिक्र को अदना न समझ ऐ मुनकर, ये एक हाथ से खबर उखाड़ देता, एक हाथ से खबर उखाड़ देता। बस अदारे ने इमाम मज़लूम करबला। अज़दारो क्या है शाम गरीबा, हाय ज़रूर करना, क्या है शाम गरीबा। मैंने कहा क्या है शाम गरीबा। शाम गरीबा वो है कि जिसमें ना किसी ने अली के बेटों को पुरसा दिया, ना किसी ने अली की बेटियों को पुरसा दिया। हज़ारों पूरी कायनात में हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान के अल्फाज में एक छोटा सा लफ्ज़ है, क्या हुआ, क्या हुआ। अज़दारों मौला हुसैन रोकर फरमाते हैं, अब्बास मर गया अली अकबर हुए जुदा, अब्बास मर गया अली अकबर जुदा हुआ, अब्बास मर गया अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अज़दारों दस्ता मदीना है। हज़ारों मौला सज्जाद घर में आए, मौला सज्जाद घर में आए, दूर से सलाम किया, अम्मा को वज़ू करते हुए देखा, दूर से सलाम किया। मुख्तसर सा मुसाहिब पढ़ूंगा क्योंकि मुझसे इतना पढ़े नहीं जाते, ये सच्ची बात, मेंबर हुसैन की कसम है। अज़दारों इसने दूर से सलाम किया, मौला सज्जाद ने दूर से सलाम किया, अम्मा का वज़ू करते देखा, वापस पलट आए। है ज़रूर करना, क़यामत अगेंस्ट फिक्रा है। अम्मा को सलाम किया, बाप को वज़ू करते देखा, वापस पलट आए। बीबी रो के कहती, भैया मौला हुसैन आज सज्जाद ने मुझे सलाम नहीं किया। मौला ने सज्जाद को करीब बुलाया, कहा सज्जाद आज तू अम्मा के पास क्यों नहीं आया। मेरे मौला सज्जाद रोकर फरमाते हैं, मेरे मौला मेरी अम्मा वज़ू कर रही थी, मेरे आका मेरे अब्बा मेरी अम्मा वज़ू कर रही थी। और शरीयत का ये कानून है कि जब औरत मसा करती है तो सर से कपड़ा हटाती है, तो अगर मैं अपने माँ का सर नंगा देख लेता तो मैं जीते जी मर जाता, तो मैं जीते जी मर जाता। सारों वही सज्जाद शाम गरीबा अली की बेटियों के सर नंगे थे के, की बेटियों के सारे अदारों वाला सज्जाद ने नंगे देखे। सारों बीबी ज़ैनब आई है ना खैमे में, मौसला कर, मौला सज्जाद आए हैं ना, बीबी ज़ैनब आई है ना मौला सज्जाद के खैमे में। मौला सज्जाद बिस्तर बीमारी पर हैं, कहते हैं सज्जाद सज्जाद आंखें खोल, ओ सज्जाद, ओ सज्जाद आंखें खोल, ओ तुझे हुसैन का वास्ता सज्जाद आंखें खोल। अज़दारों मौला सज्जाद ने आंखें खोली, अज़दारों मौला सज्जाद ने आंखें खोली और आंखों पर हाथ रख लिया, रोकर मौला फरमाते आए ना इला हिजाबा, ओ पुप्पी अम्मा तेरी चादर कहाँ है, कहाँ उतर गई। रोकर मौला सज्जाद फरमाते पुप्पी अम्मा आईना आईना अब्बास, पुप्पी अम्मा अब्बास कहाँ है, कहाँ दरिया के किनारे पर सो गए, अली अकबर वो कहाँ पर्ची छल के सो गया, कहाँ ना कासिम कहाँ टुकड़े हो गए। रो कर बीबी ज़ैनब फरमाते हैं सज्जाद तू ही अब वक्त का इमाम है, और तू ही इमाम ज़माना है। अल्लाह